Mr. Speaker, sir, first of all, I thank you for having admitted this government resolution in the item of business during this session. Sir, Legislative Assembly further resolves that the special provisions with respect to the state of Arunachal Pradesh be further strengthened by amending Article 371H by inserting provisions for protection of 1. Religious and social practices of the tribes of Arunachal Pradesh, 2. Customary law and the procedures of the tribes of Arunachal Pradesh, 3. Administration of civil and criminal justice involving decisions according to customary law of the tribes of Arunachal Pradesh, and 4. Ownership and transfer of land and its resources. Speaker, sir, now I will be not dwelling in depth into the constitutional interpretation. However, मैं इसको सिर्फ ओवरव्यू में जो हमारा प्रदेश हालत में है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, ये थोड़ा सा मैं साधन में रखना चाहता हूं, और किस सरकार का जो इंटेंशन इस रेजोल्यूशन को लाने का इस साधन में, ये थोड़ा रखना चाहता हूं। पहला, सबसे आगे ये हम लोग को ये मालूम होना है कि अंडर आर्टिकल 244 क्लोज 1 and 2 जो हमारे देश में जितने भी ट्राइबल्स हैं, वो ट्राइबल्स के लिए एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन से आर्टिकल है, जिसमें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में जो पॉपुलरली जाना जाता है। लेकिन दुख की ये बात है कि हमारे प्रदेश ना शेड्यूल 5 में जगह मिला, ना शेड्यूल 6 में जगह मिला, जो एक प्रोटेक्टिव लॉ से। शेड्यूल 5 में हम लोग दो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, लेकिन लॉ एक्सपर्ट लोग जो है इसको, ये शेड्यूल 5 में आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, गुजरात आता है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना, ये 10 स्टेट जो है 5th शेड्यूल का जो प्रोटेक्टिव जो लॉ है वो मिलता है, जितने भी इस 10 स्टेट के जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप है। तो इस 5th शेड्यूल में हमारा प्रदेश जो है कहीं जगह नहीं मिला। अभी 6th शेड्यूल जो 244 आर्टिकल 244 का क्लोज 2 में 6th शेड्यूल का जो प्रोविजन, ये जो है हमारा आसपास जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये जो है ये कानून लागू है। लेकिन दुख की बात है कि इसमें भी हमारा प्रदेश नहीं है। यहां में हमारे पड़ोसी प्रदेश जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। तो इसको कुल मिलाकर हम लोग देखा गया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल स्टेट्स को, डिस्पाइट हम लोग का प्रदेश जो है 100% ट्राइबल स्टेट है, लेकिन वहां में कहीं में भी हम लोग को इसमें प्रोटेक्टिव लॉज दिया नहीं गया है। तो वी आर ऑल अवे फ्रॉम दी 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल। तो ये एक जो है आप लोग का सामने ये इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश, customary law and the procedures of the tribes of Arunachal Pradesh, administration of civil and criminal justice involving justice decisions according to customary law of the tribes of Arunachal Pradesh, and the ownership and transfer of land and its resources. So with this, Speaker, sir, I once again appeal to every and each honorable members of this august house to give a univocal voice for resolving this resolution. Thank you, Speaker.
for the tribal people of Arunachal in a bigger platform. I think nowhere in the past we have discussed this matter in such a platform. If we go back to our political history, right from the frontier track, thereafter Northeast Frontier Agency, thereafter Arunachal Pradesh Union Territory, thereafter our statehood, the Statehood Act. I think somewhere we have lost something as far as our constitutional safeguard is concerned. If you go through political history of Arunachal Pradesh, I think prior to 1875, the Northeast Frontier Tract were not under the purview, outside the purview of the regular laws of the country. Only during 1875, an inner line was drawn for the entire tribal population inhabiting the Northeast Frontier Tract. Thereafter, in the year 1946, the Northeast Frontier Tract were reorganized into 4 frontier tracts. I'm going through the history of Arunachal Pradesh, the political history of Arunachal Pradesh. What is that 4 frontier, the 4 frontier tract? That is, number 1 is Chadia Frontier Tract. Second is Lakhimpur Frontier Tract. Third is Triad Frontier Tract. And Sela Sub-Agency and Subansiri area, those were administered by the governor of Assam. असेंबली का जो 5th सेशन में सभी ने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, इट इज एन हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट. हम लोग हमेशा सदन में बहुत चीज रिफॉर्म्स का भी हम लोग चर्चा करके आए हैं, मगर आई थिंक जो सबसे बड़ा बिगेस्ट रिफॉर्म आज हम लोग बात कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग वन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. कॉन्स्टिट्यूशनल में ही हम लोग एक रिफॉर्म लेकर आना चाहता है ताकि हमारे यहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका पूरा फ्यूचर सेफगार्ड हो. बहुत मेंबर्स लोग ने अपना कस्टम्स के बारे में भी, ट्रेडिशंस के बारे में भी बातचीत किया, अपना लैंग्वेज का बारे में भी, आज का जो हालत है, जो यंग जनरेशन है उनका क्या हालत है, उसके ऊपर भी हम लोग ने यहाँ पे चर्चा हुआ है. तो ये सब दृष्टि को देखते हुए मैंने अभी उससे पहले जो हमारा एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था जिसमें अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कार्य का स्टैंडर्डिंग किस प्रकार से करना है, तो वहां में भी मैंने एक जिक्र किया था कि अरुणाचल इज सच ए बिग स्टेट और हमारे यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब्स है, मगर देखा जाए तो हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी आर्टिकल या शेड्यूल वहां पे उपलब्ध नहीं है. हमारे पास आज हम लोगों को ट्राइबल है बोल के दिखाने के लिए एक एसटी सर्टिफिकेट है, वो अपना एक आईडी कार्ड जैसे है. इसके बाद हम सब सोचते हैं कि BEFR और चिन्हित एक्ट से हम लोग पूरा ट्राइबल है और अपना जितने भी जो यहाँ पे राइट्स है उसी के मुताबिक से यहाँ पे है, मगर टेक्निकली और प्रैक्टिकली इफ यू गो बाय द बुक्स, इफ यू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आज हम लेके आए हैं अमेंडमेंट जो प्रपोज किया है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही है. इसमें कुछ खास इसमें चर्चा करने का जरूरत नहीं है. ऑनरेबल स्पीकर सर, the question is that the bill be taken into consideration. Those secretariat, media friends, and all who have contributed directly or indirectly for the smooth conduct of the proceeding of the current session. And lastly, I would like to extend my thanks to the health department and all the doctors who have put in so much of hard work in helping us sanitizing the entire assembly complex and doing a rapid antigen test of all our members and all the people who were involved in this assembly session. So, with this, now I adjourn the House and I die.